اور موجودہ حکومت جو ہے وہ مزدور کش حکومت ہے، اور یہ اپنے سرمایہ دار لیکیز کے ساتھ اس وقت جتبر بالخصوص پاکستان کے محنت کشوں کے اوپر کانفیڈنس میں لیے ہوئے آئی ایم ایف یعنی بین الاقوامی مالیاتی سامراج کے ساتھ انہوں نے سمجھوتے کیے، اور ان سمجھوتوں کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لمبی فہرست ہے ان انسٹیٹیوشنز کی جن کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے۔ نہ صرف ان انسٹیٹیوشنز کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، بلکہ ان کے ساتھ یہ بھی طے ہوا ہے کہ ان انسٹیٹیوشنز کے اندر جو مزدور حضرات کام کر رہے ہیں ان کو نکال کے اور ایک کلین سلیٹ کر کے تو اپنے حواریوں کو یہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ دی جائیں گی۔ اس سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں 4500 مزدوروں کو ابتدائی طور پہ، ویسے تو 9000 کچھ کا نمبر ہے، لیکن ابتدائی طور پہ 4500 مزدوروں کو سٹیل مل سے نکالا گیا۔ اس سے پہلے پی آئی اے کے اندر بھی یہ ایکسرسائز جو ہے وہ وہاں پہ جاری ہے، اور وہاں سے بھی محنت کشوں کو نکالا جا رہا ہے۔ پی آئی اے کے اندر اسینشل سروسز ایکٹ لگا کے ٹریڈ یونین ایکٹیویٹیز کو معطل کیا ہوا ہے، اور وہاں پہ فضائی، کیونکہ ایئر فورس کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں، تو فضائی مارشل لا پی آئی اے کے اندر لگایا گیا ہے۔ اس ضمن میں میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نجکاری فیڈرل انسٹیٹیوشنز کی ہو رہی ہے، یہ جس طریقہ کار سے ہو رہی ہے وہ مکمل طور پہ غیر آئینی ہے، اور وہ غیر آئینی اس لیے ہے کہ آئین بڑے واضح الفاظ میں یہ کہتا ہے کہ وہ ادارے جو فیڈرل اسٹیچوٹ یعنی فیڈرل لا کے تحت اس وقت کام کر رہے ہیں، وہ ادارے فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ پارٹ 2 کے اندر آئین کے آتے ہیں، اور فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ پارٹ 2 کو آرٹیکل 154 جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے، یعنی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ۔ ان اداروں کی پالیسی، ان اداروں کا دیکھ بھال، تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے وہ مجاز ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کرے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ چاہے وہ پی آئی اے کے ملازمین ہوں، چاہے اسٹیل مل کے ملازمین ہوں، ان سب کا فیصلہ جو ہے وہ کابینہ نے کیا ہے۔ کابینہ اس بات کی مجاز نہیں ہے، کیونکہ یہ فیڈرل ادارے ہیں، لہٰذا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر، اور یہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ پارٹ 2 کے تحت آتے ہیں، لہٰذا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کو ان کی نجکاری، ان میں سے لوگوں کو نکالنا، گولڈن ہینڈ شیک دینا، یہ تمام کی تمام پالیسی ڈیسیجنز جو ہیں وہ وہاں پہ کی جانی چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے اس کو حکومت جو ہے وہ ملنے وہ اس کی میٹنگ ہی نہیں کرتی، اور وہ ایک الگ آئین کی خلاف ورزی جو ہے وہ اپنی جگہ جاری ہے۔ جو ایک سوال اٹھنا چاہیے، اور ہم اٹھاتے ہیں یہ سوال، وہ یہ ہے کہ ان تمام اداروں میں سے مزدوروں کو موجودہ حالات کے اندر نکالنے کی کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ آپ ایک طرف تو کووڈ کی بات کرتے ہیں، کووڈ کے اندر آپ نے کہا کہ جی ہم اکانومی کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں،
जैसे करामत साहब ने कहा कि सिंध का एक एक्ट भी मौजूद है जिसमें कहा गया है कि सरमायादार जो है वो कोविड के दौरान किसी को नौकरी से फारिग नहीं करेगा। सिंध असेंबली में ये कानून हाल ही में पास भी हुआ है, लेकिन देखने में ये आया कि इस हुकूमत को जल्दी बहुत है कि मेहनत कशों को, जो दर हकीकत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी हैं, उनको फौरी तौर पे अपनी नौकरियों से फारिग किया जाए कोविड के ज़माने के अंदर। और उसके बरक्स आप देखें कि जो बिग बिजनेस है, जो बिग बिजनेस हाउसेस हैं, उनको ख़ास तौर पे कोविड की वजह से ख़ास तौर पे उनको मराहत जो हैं वो दी जा रही हैं ताकि उनकी इंडस्ट्री और उनका बिजनेस जो है वो बढ़े और आगे चले। इसी तरह आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने आके और बड़े फैनफेयर के साथ बात की कि हम कंस्ट्रक्शन को जो है वो इंडस्ट्री का दर्जा दे रहे हैं, और कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का दर्जा जब दिया तो ये भी साथ में अपने लैकीज के लिए सहूलत फराहम की कि कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ये बताएं कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है। और फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को लंबी चौड़ी छूट जो है वो दी जा रही है। अभी कल ही ये खबर अखबारात में शाया हुई है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो पहले ही इतने विंडफॉल प्रॉफिट्स कमा रही हैं, उनको और उनके डीलर्स को हुकूमत जो है वो 16% इंक्रीज करने की बात कर रही है। तो एक तरफ तो सरमायादार और बिग बिजनेस को आप रिलीफ दे रहे हैं और आप उनको जो है वो ये सहूलतें दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जो गरीब मेहनतकश है, जो ऑलरेडी अपनी बेसिक सैलरी के ऊपर 2 वक्त की रोटी आपकी महंगाई की वजह से पूरी नहीं कर सकता, आप उसको जो है वो नौकरियों से निकाल रहे हैं इस कोविड के ज़माने में। और आपने देखा कि जो 4,500 मजदूर निकाले गए स्टील मिल से, उनमें से ये खबर सुनते ही एक का जो है वो इंतकाल उसी वक्त हो गया। लेकिन ये स्टील मिल के लिए ये नई बात नहीं है। बहुत से पहले भी मजदूर जो हैं वो तनख्वाहें ना मिलने की वजह से, सहूलतें ना मिलने की वजह से उनकी अमवात जो हैं वो होती चली आई हैं। तो ये बात हमें समझ में नहीं आ रही। और दूसरी बात जो स्टील मिल के ख़ास तौर पे हवाले से है वो ये है कि स्टील मिल का क्या तरीक़ाकार इन्होंने जो है वो तय पाया है। अभी तक कोई बात वाज़े नहीं आई है। पार्लियामान के अंदर इन्होंने पहले ये कहा कि ये हम इसको प्राइवेटाइज जो है वो नहीं कर रहे। फिर सेनेट के अंदर जब सवाल पूछा गया तो वहाँ पे जो लिस्ट दी गई प्राइवेटाइज्ड अदारों की, उन प्राइवेटाइज्ड अदारों के अंदर स्टील मिल मौजूद थी। अभी भी 2 या 4 दिन पहले इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला है जिसके ज़रिए से इन्होंने फाइनेंशियल एडवाइज़र अपॉइंट करने की बात की है। इसका मतलब ये है कि अभी तक कोई तरीक़ेकार या कोई रास्ता कि स्टील मिल को किस तरह रिवाइव करना है वो अभी तक तय नहीं हुआ। और जब आपने अभी तक इस बात को तय नहीं किया तो फिर इतनी जल्दी किस बात की है? आपका जो इनहेरेंट मजदूर दुश्मन एटीट्यूड है वो सामने आपके आ रहा है कि आपने ये 4,500 लोगों को निकाल दिया। लेकिन जो असल मसला स्टील मिल का है वो स्टील मिल को प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बना के चलाने का नहीं है। असल मसला स्टील मिल के साथ
जो 19,000 एकड़ जमीन है, उस जमीन को हड़प करने का मसला है। और ये पहले भी अटेम्प्ट हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, उस वक्त भी यही लोग थे। हबको उस वक्त भी इन्वॉल्व था, आयशा स्टील उस वक्त भी इन्वॉल्व थी, आईएसएल उस वक्त भी इन्वॉल्व था, और मेसर्स अल तवर्की उस वक्त भी इन्वॉल्व था। और इनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनका क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। और आज आप दोबारा इन्हीं लोगों को एज कंसल्टेंट्स लेके आ रहे हैं और उन्हीं लोगों से आप जो है मुशावरत और स्टील मिल को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, जिनका क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन जैसे मैं आपसे कह रहा था कि असल मकसद जो है वो ये 19,000 एकर्स ऑफ लैंड है। लेकिन ये बात हम वाज़े तौर पे कहना चाहते हैं कि ये 19,000 एकर्स ऑफ लैंड जो है ये हुकूमत सिंध की जमीन है, और हुकूमत सिंध ने ये जमीन जो है वो स्टील मिल को दी थी। और लिहाजा कानून के तहत अगर इसका पर्पस स्टील मिल से तब्दील किया जाएगा तो फिर मेरा मुतालबा ये होगा हुकूमत सिंध से कि वो अपनी ये अराजी वापस ले, क्योंकि एक्विजिशन एक्ट के तहत जिस पर्पस के लिए दी जाती है सिर्फ उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल की जा सकती है वो जमीन। पहले इन्होंने स्टेटमेंट दी वफाकी हुकूमत ने कि ये 19,000 एकड़ जो है वो स्टील मिल के साथ रहेगी। लेकिन कल या परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मिनिस्टर ने की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिनिस्टर ने ये वाज़े तौर पे कहा कि ये इसमें से 13,000 एकड़ जो है उसको हम लीज पे देंगे। और हम समझते हैं कि वो लीज मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज के लिए की जा रही है, मुख्तलिफ और चीजों के लिए वो इस्तेमाल की जा रही है। ये वफाक का जो लालच है कि वो सूबाई रिश्ते डाले, ये उसकी तरफ एक कदम है। जैसे आपने देखा कि कुछ अर्सा पहले वफाक ने एक कानून निकाला जिससे सिंध के जो आइलैंड्स थे उनको हथियाने की बात की गई। ये सिंध और छोटे सूबों के या सूबों के जो रिसोर्सेज हैं, ये उन रिसोर्सेज के ऊपर अपना कब्जा और तसल्लुत जमाना चाहते हैं। लिहाजा हम इस बात पे बड़े क्लियर हैं कि मजदूरों के ऊपर जो इस वक्त मुल्क गिर सतह के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जो मुख्तलिफ अदारों के अंदर एसेंशियल सर्विसेज एक्ट लगा के ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज को बंद किया हुआ है, हम इसके खिलाफ जो मजदूर पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है वो अपनी जिद्दोजहद को इन इक़दामात के खिलाफ तेज करेंगे। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि जितने प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स मजदूर तहरीक के अलावा हैं, चाहे वो सियासी जमातें हों, चाहे वो पार्लियामान हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, चाहे वो एकेडमिया हो, वो मजदूरों की इस जिद्दोजहद में उनके शाना बशाना साथ रहेंगे और साथ चलेंगे। आज आप ये भी देख रहे हैं कि जो मिनिमम वेज है वो मिनिमम वेज अब पहले से कहीं कम हो गई है। कम इसलिए हुई है कि एक तो इन्फ्लेशन की वजह से, दूसरा महंगाई की वजह से, और तीसरी बात यह है कि बहुत से ऐसे अदारे हैं जहां पे मिनिमम वेज जो है वो अदा ही नहीं की जा रही मेहनतकशों को। लिहाजा हमारा आज यहां से ये मुतालबा भी है कि मिनिमम वेज के अंदर
इजाफा जो है वो किया जाए, क्योंकि जो मौजूदा मिनिमम वेज है उसके अंदर मजदूर का गुजारा जो है वो नहीं हो सकता। और अगर आप सरमायादारों को इंसेंटिव कोरोना की वजह से दे सकते हैं, तो फिर आप गरीब को, जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, जो पाकिस्तान की मईशत को चलाता है, तो फिर आप उसके लिए सब्सिडी या कोई ऐसा इकदाम क्यों नहीं उठा सकते। तो हमारी आखिर में मैं एक बार फिर इस बात को रीटरेट करना चाहता हूं कि जो स्टील मिल के मुलाजमीन को निकाला गया है, हम उसकी सख्ती से मजम्मत करते हैं। इसी तरह दीगर अदारे PIA और दीगर अदारों से जिन मुलाजमीन को निकाला जा रहा है उसकी सख्ती से मजम्मत करते हैं और हर फोरम के ऊपर इसकी मुज़ाहमत जो है वो करेंगे। शुक्रिया। जी अभी सवाल और हमारा मुतालबा यहाँ से आज ये है कि जो रिट्रेंचमेंट लेटर जारी किया गया है स्टील मिल के अंदर, उसको फौरी तौर पे जो है वहाँ की मैनेजमेंट उस लेटर को वापस करे। आपने जिन मजदूरों के और मजदूरों की स्थिति तो आपको ध्यान है, खासतौर पर अगर हम स्टील मिल की बात की जाए तो मजदूरों के नुमाइंदे तो खुद सरमायादार बन गए। तो स्टील बिजनेस में उनके असासे हैं, उनके चेक कराने की जरूरत है या नहीं। दूसरी बात, पीपुल्स पार्टी अपने दौर में स्टील मिल को रिवाइव क्यों न कर सकी, इसका जिम्मेदार कौन है? मेरी गुजारिश तमाम साथी दोस्तों से ये है कि पहले हमारे साथी बात करेंगे, फिर सवालात किए जाएं, और दूसरा सवाल इशू के ऊपर किए जाएं बराए मेहरबानी। तो हमारे साथ यहाँ स्टील मिल की मुख्तलिफ जो यूनियन एसोसिएशन है उनके साथी मौजूद हैं, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उन तमाम लोगों ने बग़ैर किसी पार्टी एफिलिएशन या किसी और के इकट्ठे होकर इस जुल्म का मुकाबला करने का फ़ैसला किया है। इसको हम वेलकम करते हैं, और सारे मुल्क के मज़दूर इसी तरह से इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे होंगे जिस तरह स्टील मिल के मज़दूरों ने अपने आप को इकट्ठा किया है। तो यहाँ मौजूद हैं हमारे जो स्टील मिल की इस वक्त CBA यूनियन के सदर साहब, तो उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो मुख्तसरन कौन से अहम मसले हैं जिनको हमने लेके चलना है आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैं तमाम सहाफ़ी भाइयों का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं इंसाफ लेबर यूनियन CBA चेयरमैन मोहम्मद यासीन जामड़ो, जो कि स्टील मिल में मौजूदा CBA स्टेक होल्डर हैं, ये जो रिट्रेचमेंट का इन्होंने 4,500 लोगों को लेटर जारी कर दिया है, कानूनन तो ये होता है कि CBA को एतमाद में लिया जाता है और उससे मीटिंग की जाती है इज्तिमाई फैसले करने के लिए, जो कि इस गवर्नमेंट ने या इंतज़ामिया पाकिस्तान स्टील मिल ने नहीं किया है, वो गैर कानूनी अमल किया है। और उससे पहले हम उस बात पे आना चाहते हैं कि गवर्नमेंट को कई ख़त हमने लिखे CBA के टाइम पीरियड में कि जनाब आप स्टील मिल रिवाइवल का प्लान हम दे चुके हैं। कई दफ़ा हमने ऑफ़र की कि आप बैठे हमारे साथ, स्टील मिल हम आपको चला के देते हैं। और ये CBA जितनी भी ट्रेड यूनियन है वहाँ पर मौजूद हैं, तो वो सारों को जो है ये इस बात पे इत्तेफाक है कि हम स्टील मिल चलाना चाहते हैं, ना कि किसी हबको ग्रुप के या अल आरफ हबीब ग्रुप के हवाले करके और स्टील मिल का इतना बड़ा इदारा बंद करके। और ये मुल्क की रीढ़ की हड्डी की मानद है पाकिस्तान स्टील मिल, और इसके बगैर जो मईशत को नुकसान होगा या इसके बगैर जो मुल्क को नुकसान होगा, ये हम हुकूमत वक्त से कहते रहें वक्तन बवक्तन, लेकिन हुकूमत को क्या ऐसा फार्मूला है कि तमाम लोगों को फारिग करके और फिर ये स्टील मिल चलाएंगे और 20,000 पे जो है तनख्वाहदार लोग रख के हमसे कम तनख्वाह पर जो है ना ये स्टील मिला के चलाएंगे, जबकि इंजीनियर हमें, टेक्निकल लोग हमें, और 20,000 पे 2012 से लेके अब तक तनख्वाह पे काम कर रहे हैं।
तो ये वज़ीर आज़म को फैसला वापस लेना होगा। और मेरी यहाँ पे जो नेशनल फेडरेशन है या जितनी भी तंजीमें हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है, या जितने इदारों में अभी लोग निकालने जा रहे हैं, तो इस पे इत्तेफाक करके इस हुकूमत का ये फैसला जो है जब करवाएं। और इन मज़दूरों को एक तरफ तो मुल्क में जो है एक कोरोना की जो वबा फैली हुई है, लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, कभी स्कूल बंद, कभी मार्केट बंद, तो हमें ये 3 लाख रुपए दे के वज़ीर आज़म कौन सी मदीने की रियासत साबित करना चाहते हैं कि 3 लाख में हम अपना घर भी लेंगे, जो कि 100 गज़ का प्लाट भी 20 लाख से कम नहीं है, जहां रिहाइश की बुनियादी सहूलतें हों। तो हम ये 3 लाख में प्लाट लेंगे, घर बनाएंगे, या बच्चों की सर्वाइव करेंगे, या बच्चों को तालीम फराहम करेंगे, या उनकी रोजी रोटी का बंदोबस्त करेंगे। तो ये बहुत बड़ा इनका जो है एक जारहाना कदम है। और मैं उनसे अपील करता हूँ इस प्लेटफॉर्म से, इस फोरम से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से, कि इस कदम से पीछे हट जाएं, हमारे साथ बैठें, हम आपको रास्ता भी देंगे। जो मुल्क के मफाद में होगा, जो मजदूर के मफाद में होगा, हम उस पर आपके साथ एग्री करेंगे। ये तमाम सीबीए बैठी हुई है, ये पीपल्स वर्कर यूनियन के जो है चेयरमैन शमशाद कुरैशी साहब बैठे हुए हैं, ऑफिसर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो है मिर्ज़ा मकसूद साहब बैठे हुए हैं, मैं खुद सिटिंग सीबीए का चेयरमैन बैठा हुआ हूँ, और तमाम जो अलायंस बनी है, तमाम ट्रेड यूनियन मौजूद हैं। हम बारहा कह रहे हैं कि हम ये करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत को अपने दोस्तों को नवाजना है तो हम ये इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। और मेरी ये सब मजदूर यूनियनों से, फेडरेशनों से अपील होगी कि पूरे मुल्क में एहतजाज का दायरा जो है बढ़ाया जाए। जैसे कि कल हमने 12 घंटे मुसलसिल रेलवे ट्रैक बंद रखा, लेकिन हमें एहसास हो रहा था कि वो भी मजदूर हैं, हमारे भाई हैं, इस मुल्क के लोग हैं, वो परेशान हो रहे होंगे ट्रेनों में, लेकिन हुकूमत को ज़रा सी भी शर्म नहीं आई कि कोई स्टेटमेंट देती, उन लोगों के लिए देती। फिर भी ये सिंध गवर्नमेंट ने हमारे साथ जो है बात की, और उन्होंने ये कहा कि जनाब हम आपका जो है केस लड़ेंगे, एक कमेटी भी बनाएंगे सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, ख़त भी लिखा जाएगा, वफाकी गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे इस बात पे बैठें आप लोगों के साथ और मसला हल करें। अदरवाइज हम सिंध गवर्नमेंट से फिर गुजारिश करेंगे कि हमारी जो इखलाकी और कानूनी है सपोर्ट करे कोर्टों के अंदर, और जो हम एहतजाज करेंगे उसके अंदर। बाकी हम तमाम मुलाजिम, और इन मुलाजिमों को भी मैं ये इस हवाले से पैगाम देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने लेटर रिसीव कर लिए हैं तो एनपी को ज्वाइन न करें, एनडीसी क्लियर न कराएं, और अपनी जो है ना पेमेंट न निकलवाएं। ये फैसला हमें रब की ज़ात पे यकीन है और उम्मीद से हैं जो हमारा ये इत्तेफाक हुआ है। और जिस तरह हमें रज़ा रबानी साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, सईद गनी साहब सब राब्ते में हैं, और जो हमारी ये फेडरेशन बैठी हुई है, हमें ये पुख्ता यकीन है अल्लाह की ज़ात पे, जहाँ इत्तेफाक होता है वहाँ वो सारे मसले हल हो जाते हैं। तो मजदूरों से मेरी गुजारिश है कि कोई भी पैसे ना लें, ये फैसला इंशाअल्लाह ताला वापस करवाएंगे, और इस हुकूमत को इस बात पर मजबूर करेंगे, ये गैर कानूनी कदम जो उठाया है इसको वापस करवाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। मैं शमशाद कुरैशी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी कुछ अपने ख्यालात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रज़ा रबानी साहब का बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ, करामत साहब का, जुनैदी साहब का और दीगर दोस्तों का। मैं आपके सामने स्टील मिल के हवाले से बात हो रही है, तो हम 5 मरतबा हम सीबीए रहे हैं। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मिस मैनेजमेंट की, इनकॉम्पिटेंसी की और नॉन प्रोफेशनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सज़ा ग्रेड 1, 2 और 3 के मजदूर को दी गई है। और वो इदारा जिसकी अपनी अभी तक इन मौजूदा पीटीआई हुकूमत के 2.5 सालों में अभी तक तय नहीं कर सके कि स्टील मिल को प्राइवेटाइज करना है, स्टील मिल को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ले जाना है, स्टील मिल को लीज पे देना है, ये कोई वाज़ेह डायरेक्शन नहीं है। ये पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। सिमिलरली ऐसे कि कितना बड़ा फ्रॉड है कि ये हमें तो लेटर रिसीव हो गए,
1 مہینے کی ایڈوانس جو ہے وہ سیلری ہے اور اس کے بعد آپ اپنے ڈیوز لے اور گھر جائیں. منسٹر جو کنسرن ہے، منسٹر حماد اظہر MOIP کے جو منسٹر ہیں، وہ روز فلور آف دا ہاؤس پہ کہہ رہے ہیں کہ 23 لاکھ روپے پر ہیڈ ملیں گے، 23 لاکھ روپے پر ہیڈ ملیں گے، اور یہ ECC نے اپروو کر دیا، پھر وہ کیبنٹ نے اپروو کر دیا. یعنی وہ جو ہم سنتے تھے نا کہ کورٹ میں ہم سنتے تھے کہ تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ. یہ واحد حکومت ہے، یہ 6 دفعہ منظوری پہ منظوری، منظوری پہ منظوری. وہ کتنی دفعہ منظور کرو گے؟ اور انفیکٹ مطلب دس از آل فراڈ. ادارے میں کوئی 1 مہینے کی ایڈوانس سیلری اور اس کے بعد گھر جاؤ. تو یہ ایک آپ کو یاد ہوگا، ابھی بھی کہا، کل کی کیبنٹ میٹنگ میں بھی، ECC میں بھی، کہ ہم دینے جا رہے ہیں جی گولڈن ہینڈ شیک ہینڈ دیں گے. گولڈن شیک ہینڈ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ایک چیز اور میں رضا بھائی کی موجودگی میں، آپ دوستوں کی موجودگی میں فائدہ اٹھا کے بتانا چاہتا ہوں. یہ 49.9% جو امپلائی ہیں جن کو ریٹرینچ کیا گیا ہے، ابھی وہ 2 دن پہلے مینجمنٹ آف اسٹیل چلی گئی ہے اسٹینڈنگ آرڈیننس 1968 کے 11A کے تحت لیبر کوڈ نمبر 4 میں، سندھ لیبر کوڈ نمبر 4 میں، جس میں مور دین 50% لوگوں کو نکالنے کے لیے لیبر کوڈ سے پرمیشن لی جاتی ہے. تو 49.9% تو وہ جو چیف ایگزیکٹو ہے اس کی کمپٹنسی تھی، اسے نکال دیا. مزید نکالنے کے لیے جو ہے وہ چلے گئے ہیں، اور جس کی تاریخ ہے 7 تاریخ لگائی گئی ہے، 7 دسمبر. یعنی حماد اظہر نے جو کہا ہے کہ 95% لوگوں کو اسٹیل مل سے نکالا جائے گا. اب اس کے بعد پھر ان کے 1 مہینے کی وہ دے کر اور پھر جو ہے جبری طور پر ان کے مکانات خالی کرائے جائیں گے. تو وہ اب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ 1 کروڑ نوکریاں دینے کی نہیں، لینے کی بات تھی. وہ 50 لاکھ گھر دینے کی نہیں، لینے کی بات تھی محنت کشوں سے. تو میں اپنے ان رہنماؤں کی موجودگی میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ لیٹر جو دیے گئے ریٹریچمنٹ کے، یہ واپس کیے جائیں. اور یہ پہلے بھی ایک دفعہ شب خوں مارا گیا تھا 2006 میں پرائیویٹیشن میں. اس وقت بھی ہماری یونین گئی تھی پٹیشن میں، اور جو لارجر بینچ نے 9 رکنی سپریم کورٹ کے، اس کو نل انوائٹ کیا تھا. اس فیصلے میں لکھا گیا ہے، اس میں پرائیویٹیشن کے پیرامیٹرز طے کر دیے گئے ہیں کہ آج کے بعد اس ملک کا کوئی بھی ادارہ اگر پرائیویٹائز ہوگا تو اس کے تحت ہوگا. اس تمام کی وائلیشن ہو رہی ہے. رضا بھائی نے لیگلی بھی اس پہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ سارا ڈسکس چل رہا ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پارلیمنٹ کے ساتھ ساتھ لیگل فائٹ میں بھی جو ہے پیپلز پارٹی اور ہماری یونین جائے گی. اور آخری حد تک ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہ ایک جو پاکستان کا واحد سب سے بڑا ادارہ جس کا یہ حال کیا گیا، اس ذمہ دار کی بجائے، حال کرنے والے ذمہ داروں کی بجائے گریڈ 1 2 3 کے ورکرز پہ سارا نازلہ گرا دیا گیا. تو ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ ظالمانہ فیصلہ واپس لے فوری طور پر، اور اگر نہیں تو پھر پاکستان کے تمام مزدور، صرف اسٹیل مل کے نہیں، ایک بہت بڑی قوت بڑھ کر اپنے ان رہنماؤں کی موجودگی میں، ان کی سرپرستی میں اپنی طاقت جو ہے وہ خود منوائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. مرزا مقصود صاحب گزارش ہے کہ شکریہ. وہ محترم میاں رضا ربانی صاحب کا، کرامت صاحب اور باقی جو ساتھی ہیں، پاکستان اسٹیل پہ آپ جانتے ہیں کہ آل امپلائیز ایکشن کمیٹی جو ہے وہ قائم کر دی گئی ہے، جس میں ادارے کی تمام ٹریڈ یونینز اور ایسوسیشنز جو ہے وہ شامل ہیں، اور مسلسل جو ہے نا وہ پروٹیسٹ کر رہی ہیں. پہلے 2 دفعہ جو ہے وہ نیشنل ہائی وے پر جو ہے وہ پروٹیسٹ ہوا ہے، اور پھر کل جو ہے وہ 12 گھنٹے جو ہے نا وہ جو مین ٹریک ہے وہ بند رہا ہے. اور پی ٹی آئی کی حکومت نے، مرکزی حکومت نے جو نا ریکارڈ قائم کیا بے حسی کا کہ 12 گھنٹے میں جو ہے وہ کسی وفاقی نمائندے نے جو ہے وہ جب
हमने जो है वो धरना खुद ख़त्म करने का जो फ़ैसला किया वो सिर्फ इसलिए किया कि जो मीडिया पे जो मुख्तलिफ स्टेशनों पे या ट्रेनों में जो अवामुन्नास का जो हाल था, तो उसकी वजह से हमने उस तकलीफ़ को महसूस करते हुए जो है वो ये हमने ख़ुद जो है ना वो अपना जो एहतजाज था वो रेलवे ट्रैक पे से ख़त्म किया। और लेकिन इससे ये बात साबित हो गई कि मौजूदा हुकूमत की नज़र में जो है ना वो किसी भी जगह पर जो आवाम के एहतजाज या आवाम की मुश्किलात का जो है ना कोई वो नहीं। तो ये यकीनन जो है ना वो इन हालात में फिर आवाम के लिए जो है वो नहीं रहता कि ऐसी हुकूमतें जो है मज़ीद हुक्मरानी कर सकें। दूसरा जो पाकिस्तान स्टील का इशू है, तकरीबन उसकी जो टोटल जो असेट्स जो है वो कैलकुलेट होती है, वो तकरीबन जो है वो 700 बिलियन की जो है वो असेट्स होती हैं जो अभी जो इस वक्त जो वो चल रहा है। इसमें से जैसे रज़ा रब्बानी साहब ने भी बताया कि जो मीडिया में जो इनका मजवज़ा प्लान आया है उसमें जो पाकिस्तान स्टील का कोर प्लांट है और उसके साथ 1300 एकड़ ज़मीन जो है वो एक नई कंपनी बना के उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और फिर उस नई कंपनी को जो है वो लीज आउट या प्राइवेटाइज या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वो सारे वो होंगे। और जो पाकिस्तान स्टील मिल्स कॉरपोरेशन है वो और ये जो ज़मीन है 4500 एकड़ जिस पे कोर प्लांट है और प्लस जो है वो 1300 एकड़, इसके अलावा जितनी भी ज़मीन है जिसमें कुछ इंडस्ट्रियल जो है वो ज़मीन और कुछ जो है वो जो टाउनशिप लैंड कहलाती है कोई 9500 जो है वो एकड़ के करीब, ये सारी ज़मीन जो है पाकिस्तान स्टील मिल्स कॉरपोरेशन के नाम पर रहेगी जो पहले से रजिस्टर्ड कंपनी है और जिसको बनाने के लिए पूरे एक नेशनल प्रोजेक्ट के तहत तमाम जो है वो सूबों ने उसमें हिस्सा डाला था और सिंध ने जो है वो ज़मीनों की मद में जो हिस्सा डाला था। तो ये एक अजीब मजाक होगा इस मुल्क में पहली दफ़ा कि जो पाकिस्तान स्टील मिल्स कॉरपोरेशन है उसका स्टील का बिजनेस नहीं होगा। और अभी तक इसने वफाकी हुकूमत ने ये वाजे नहीं किया कि वो जो बाकी जो कंपनी जो पहले से रजिस्टर्ड है 1967 से रजिस्टर्ड है, अब उसका पर्पस क्या होगा। तो ये सब पे शिफ्ट कर दिया जाएगा और वो जो इशू है वो फिर एक नए जो है वो आईनी बहरान का बाइस बनेगा कि जिसमें जो है वो जब उसका वो कोर बिजनेस नहीं रहा तो फिर जो है वो सिंध का ये राइट होगा कि वो अपने तमाम जो बाकी असेट्स हैं वो उसका मुतालबा करे। और यकीनन जो है ना ये कोई छोटा इशू नहीं होगा कि उसके बाद भी शायद जो है वो कोई 500 से ज़्यादा अरब का जो है ना ये असेट्स जो है ना वो रहेंगे। दूसरा ये कि इससे ये भी साबित होता है कि पाकिस्तान स्टील के पास फंड्स की कमी नहीं थी। अगर जो है वो गवर्नमेंट चाहती इसको रिवाइव करने के लिए, इसकी एक्सपेंशन के लिए, तो इन्हीं जो असेट्स थे उसका कुछ हिस्सा जो है वो उस पर मख्तस करके फंड्स जनरेट कर सकती थी और इसको रिवाइव कर सकती थी। तो मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ और पाकिस्तान स्टील के एम्प्लॉइज समझते हैं कि जी पहले जो है वो जिस तरीके से चीनी में, गंदम में, कंस्ट्रक्शन में जो है वो अपने एटीएम्स को नवाजा गया, तो अब जो स्टील के जो उनके हुकूमत के जो एटीएम्स हैं उनको नवाजने के लिए हमें बकरा बनाया जा रहा है। इसीलिए चीज़ें जो अभी तय नहीं है, लेकिन सबसे पहले जो है वो एम्प्लॉइज़ को जो है वो यहाँ से जो है वो रिट्रेच किया गया। तो इसलिए हम बिल्कुल फैसला कर चुके हैं वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन कि हम हर सूरत में इसको रजिस्ट करेंगे और जब तक ये फैसला वापस नहीं लिया जाएगा हम जो है मज़ाहमत भी करेंगे और हर जो है वो इंतहाई कदम की तरफ भी बढ़ेंगे। ये हमारे लिए जो है वो खुशाइंद है कि जो पाकिस्तान की दीगर मजदूर तंजीमें, सिविल सोसाइटी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो इस पे जो है वो हमें सपोर्ट कर रही हैं। ख़ासतौर पे जो है वो सिंध हुकूमत जो है वो जो पीपल्स पार्टी जो है सपोर्ट कर रही है। तो हम इस अज़्म का आपके सामने रखना चाहते हैं, आपके ज़रिए बाकी सबको मैसेज देना चाहते हैं कि ये एक जद्दोजहद है जो वसी तर होकर तमाम मजदूरों की जद्दोजहद बनेगी। बहुत शुक्रिया। ये आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ तमाम सहाफ़ी दोस्तों के साथ कि इस वक्त प्रेस क्लब के इस हॉल में पूरे सिंध के जो है वो 90% मज़दूरों के नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं और ये बहुत शॉर्ट नोटिस पे हुआ है। तो इस हुकूमत के इक़दामात की जहाँ मज़म्मत करना बहुत ज़रूरी है, हम इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि इन्होंने सारे मज़दूरों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने की में बहुत एक अहम किरदार अदा किया है। और ये इंशाअल्लाह इसी हफ्ते में हम पूरे मुल्क की बुनियाद पर
एक मज़दूर एक्शन कमेटी बना रहे हैं, जिसमें इस मुल्क की तमाम जो मज़दूर तंजीमें हैं वो शामिल होंगी। जिस तरह स्टील मिल के साथियों ने लीड ली है कि सब तमाम इख्तलाफात को भुला के एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं, तो इसका पूरे मुल्क में वेलकम किया जा रहा है ट्रेड यूनियन की तरफ से। और चाहे वो सहाफ़ियों की तंजीमें हों, वो मज़दूरों की तंजीमें हों, पब्लिक सेक्टर की, सब इसमें शामिल हो रही हैं। तो इंशाअल्लाह एक बड़ा इत्तेहाद बनेगा जो मज़दूरों के तमाम बुनियादी मसाइल को जो है वो लेकर चलेगा। तो यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के हमारे साथी बस इसके बाद एक छोटी सी बात मैं आप दोस्तों को थोड़ा आप सवाल ज़रूर कीजिएगा, सवाल हर सहाफ़ी का राइट है। प्लीज़ बस थोड़ा सा, चूँकि दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं तो यकीनन ये नुमाइंदगी जो है वो होनी भी चाहिए और इसकी वजाहत भी होनी चाहिए कि कौन कौन दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो कराची के कई हज़ार सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीम है, वो यहाँ पर सिर्फ इसलिए मौजूद है कि हम ये समझते हैं कि जो इस वक्त मज़दूरों के, मेहनत कशों के मसाइल हैं, वो कलम और कैमरे के मज़दूरों के मसाइल से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं। जिस तरह से इस वक्त मुख्तलिफ इदारों से लोगों को जबरी बरतरफ किया जा रहा है, तनख्वाहों के मसाइल हैं, वही मसाइल जो हैं इस वक्त मीडिया हाउसेस के भी हैं। मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस में इस वक्त जबरी बरतरफियों का सिलसिला जारी है। कई माह से तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही हैं, लोगों को जो है वो उनकी तनख्वाहों में कटौती की जा रही है। तो ये वो मसाइल हैं जो इस वक्त तकरीबन पूरे मुल्क के मज़दूरों के, मेहनत कशों के मसाइल हैं। तो कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, कल भी हमने अपने पाकिस्तान स्टील मिल के जो साथी हैं, जो वो कल रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए थे, उनसे वहां जाकर हमने इजहार यकजहती किया था। और इस वक्त भी हमारी मौजूदगी यहाँ इस बात का इजहार है कि हम पूरे मुल्क की मजदूर बरादरी के साथ, मेहनत कशों के साथ हैं। कराची के सहाफ़ी, कलम और कैमरे के मजदूर इस जद्दोजहद में जिसका जो भी फैसला होता है कि उसको किस अंदाज में चलाना है, उसमें हम शाना बशाना होंगे और मिलकर जद्दोजहद करेंगे। क्योंकि ये जंग किसी एक मजदूर की नहीं है, ये हर मजदूर की जंग है, चाहे वो कैमरे का मजदूर हो या किसी भी दूसरे इदारे का मजदूर हो। बहुत शुक्रिया। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब कोई वर्कर बेरोज़गार होता है तो जो तकलीफ़ और जो अज़ाब होता है वो उसके घर की औरतों और बच्चों से पूछिए। तो ये जो हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है, इंडिपेंडेंट हम बने, हम खुद लगाएं। दो तरह से आप इससे, एक तरफ तो आप गरीब आदमी वर्ग मार रहे हैं और दूसरी तरफ आप पाकिस्तान को चाहते हैं कि वो इसी तरह भिखारी बना रहे और हम सुई धागा हर चीज़ बाहर के मुल्कों से बरामद करें। तो ये हम इससे हम सख्त एहतियात करते हैं। हम स्टील मिल के अपने सारे साथियों के साथ खड़े हैं, हम सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं। मैं तो खैर खुद भी सहाफ़ी रही हूँ और मैंने बेरोज़गारी के हिसाब भुगते हुए, मुझे पता है। तो हम आपके साथ हैं। अगर एक गुजारिश हमारे बात सारी सवालों के जवाब देंगे। ये हम लोग जो से गुजर रहे हैं तो बहुत को आते हैं आपकी जगह पे, इतने सवाल ले लें। हमारे ये साथी सब सवालों की जवाब इदारों में गैर कानूनी भर्तियां जारी भर्तियां होंगी, इदारे फौज बन जाएंगे, तो अंजाम तो यही होगा कि जमहूरियत के आगे भी सवालिया निशान लग रहे हैं जो हो रहा है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जमहूरियत के सामने तो कोई सवालिया
निशान नहीं लग रहा। जो बुनियादें रखी गई मार्शल लॉ अदवार के अंदर, उनको जो जमहूरी हुकूमतें आईं उनको उनका भुगतना पड़ा। जिस तरह क्रोनी कैपिटलिज्म को मुशर्रफ के दौर के अंदर बढ़ाया गया, वो आपके और हमारे सबके सामने है। और आज भी जो मौजूदा हुकूमत है, उसकी अगर आप काबीना उठा के देख लें तो आधे से ज़्यादा वुज़रा और एडवाइज़र्स और स्पेशल असिस्टेंट्स जो हैं वो उसी टीम का हिस्सा हैं। लिहाजा जो पॉलिसीज़ उस वक्त चल रही थी, मिल दीगर अदारों को ख़त्म करने के लिए, वही पॉलिसीज़ जो हैं वो आज भी चल रही हैं। मेरा सवाल आपसे भी है और यासीन जामरों से। आपसे सवाल ये है कि बहुत अरसे से ये बात चल रही है कि सिंध गवर्नमेंट स्टील मिल को टेक ओवर करना चाहती है या लेना चाहती है, तो उसमें क्यों लेट प्लान की जा रही है, क्यों इस बारे में कोई डिसीजन लिया जाता? और यासीन जामरों साहब, आप पीटीआई का हिस्सा है, तो आप पीटीआई से अलग होकर क्यों नहीं इस स्ट्रगल में शामिल होते? देखिए, जहाँ तक सिंध गवर्नमेंट का ताल्लुक़ है तो मेरा ख्याल है वो बेहतर पोजीशन में होंगे कि इस बात को क्लेरिफाई करें कि आया वो इसको टेक ओवर कर सकते हैं या नहीं। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इब्तिदा में ये बात ज़रूर हुई थी कि सिंध हुकूमत ने अपना इंटरेस्ट शो किया था, लेकिन मौजूदा उनकी क्या पॉलिसी है ये वही बता सकें। मैं ऐसे ही बता देता हूँ, हमारी आवाज़ कौन जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप कह रहे हैं कि अलहदा हो के आप पीटीआई से ताल्लुक़ है, मेरा बिल्कुल है, लेकिन मैंने अलहदा भी ये जदोजहद जारी रखी, ख़त खिताबत जारी रखे और तमाम मिनिस्टरों से मुलाकातें रखी, लेकिन उनको ये कह दिया गया था और मुझे एक ज़िम्मेदार शख्स ने कहा कि हम मजबूर हैं IMF के आगे कि हम ये फ़ैसला आप वाला रिवाइवल वाला नहीं कर सकते। तो उसके बाद फिर मैंने इंसाफ हाउस में भी जाके धरना दिया जब ये फैसला होने जा रहा था ICC के अंदर के तमाम मुलाजमों को फारिग कर दिया जाएगा। तो ये लामहला जो है इस वक्त ने ये फिर सिखाया है हम सबको कि अकेले अकेले जदोजहद फिर लोग बट रहे थे कि जनाब ये तो इनकी हुकूमत है, ये शायद हमें जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए हमें ये वक्त पर जो है ये फैसला किया कि तमाम ट्रेड यूनियनें, मज़दूर और उसका पेट अलग नहीं है, मज़दूर एक ही है। तो मैंने बड़ी कोशिश की अपनी हुकूमत से बैठने की बात की, लिखने की हद तक ज़बानी, लेकिन मुझे रिस्पांस नहीं मिला और वो कहते रहे हम आपके साथ बैठेंगे। अभी एक हफ़्ता पहले जो है चीमा साहब से मेरी बात हुई, अकरम चीमा जो रिवाइवल कमेटी का मेंबर भी है, उन्होंने भी कहा जी ये फैसला हो गया है, बस बहुत जल्द आपको पैसे मिल जाएंगे। तो फिर हमने ये फैसला किया कि अगर आपने हमें ये 3 लाख की मौत इंजेक्शन लगानी है तो हम ऐसी हुकूमत से क्या लेंगे जो मेरे घर भी बिल्डोज़र करे और मेरे बच्चों का मुस्तकबिल भी दाव पे लगे और मेरी हुकूमत सुनने के लिए तैयार ना हो। तो ऐसी हुकूमत से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे मज़दूरों ने चुना है, मज़दूरों ने वोट दिया था। उन मज़दूरों की खातिर मेरा खुद जो है उसमें चूल्हा ठंडा हो रहा है, मेरे खुद बच्चों की तालीम ख़त्म हो रही है। तो मैंने ये फैसला किया ऐसा कि हालांकि इस वक्त मैं सिटिंग CPA हूँ, लेकिन हमारी रजिस्ट्री यूनियन का एक जो प्रेसिडेंट है वो इसको लीड कर रहा है। मैंने कहा मैं छोटा सा मजदूर होकर भी हिस्सा डालूंगा, जो मेरी कानूनी हैसियत है वो मैं अदा करूंगा। ये मोहतरम कुरैशी साहब बैठे हुए मुझसे सीनियर हैं, इन्होंने 9 साल दौर यूनियन चलाई भी है। तो मैंने इनको भी कहा कि आप आगे लगे, हम आपके पीछे हैं। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा ये है कि पाकिस्तान स्टील मिल चले, ना कि आरिफ हबीब और हफ्कों को दी जाए। और इनको जब रिट्रेसमेंट का जो ये इन्होंने ढोंग रचा है, ये फैसला वापस करें। हमारी कोई ज़ात नहीं है, ना हम छोटे हैं ना बड़े हैं, हम सिर्फ मजदूर की हैसियत हैं इस वक्त। और कोई सवाल किसी दोस्त का? मैं उधर क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। एक तो ये कि ये एक बड़ी मिसकंसेप्शन